Fawaz. All right, you read the scenario. Unmute yourself and read the scenario. A 65-year-old male with a history of uncontrolled hypertension जी. presents to the emergency room with sudden severe chest pain that radiates to his back. On physical examination, his blood pressure is significantly different in both arms, and he has a widened mediastinum on chest X-ray. An urgent CT scan confirms the diagnosis of aortic dissection. Which of the following is the most common location for the initiation of an aortic dissection? All right, good. Alpha ascending aorta, Good. beta aortic arch, Charlie descending thoracic aorta, and delta abdominal aorta. ऑलराइट, गुड, वेरी गुड. तो अभी जो है हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद यू हैव टू आंसर दिस सिनेरियो. अच्छा, ये जो है बड़ा ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. मैं अक्सर कोशिश करती हूँ और इस टॉपिक के दौरान भी जो जहां जहां से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं वहां पर मैं पॉइंट आउट करती जाऊंगी, तो वो पॉइंट जो है आप मार्क कर लें. अच्छा, क्वेश्चन तो खैर एब्डोमिनल एओर्टिक डायसेक्शन का है, लेकिन जो आपका डेविडसन है उसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि पहले एओर्टिक एन्यूरिज्म है, एंड देन एओर्टिक डायसेक्शन है, एंड देन एओर्टाइटिस है. तो हम इसको लाइन वाइज कवर करेंगे और उसके बाद आपने इसमें से पिक करना है, एंड देन एट द लास्ट वन ऑफ यू विल बी आंसरिंग द question. So what is basically aortic aneurysm? Aneurysm basically means a dilatation. So aortic aneurysm is defined as an abnormal dilatation of the aortic lumen. So basically a normal aortic lumen, whenever it dilates, it is referred to as aortic aneurysm. And what is the most common site of aortic aneurysm? जो aortic dissection का है हम आगे पढ़ेंगे. ये भी आपका MCQ पॉइंट है. जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ aortic aneurysm है, that is infrarenal abdominal aorta. So वो आपको suprarenal, infrarenal इस तरह से करके जो है ना ऑप्शंस दे सकते हैं. तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है infrarenal abdominal aorta होता है. The suprarenal abdominal aorta and a variable length of descending aorta भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं in 10 to 20% of the patients, but the most common one is infrarenal abdominal एओर्टा. यहाँ पर जो है आपको दो डायग्राम्स दी हुई हैं. नीचे एओर्टिक डायसेक्शन के है, ऊपर जो है एओर्टिक एन्यूरिज्म की है. तो अगर आप यहाँ पर देखें, आपकी ये जो रीनल आर्टरी जो है यहाँ पर रीनल, तो ये जो इंफ्रारीनल साइट है, दैट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट साइट ऑफ द एओर्टिक एन्यूरिज्म. और यहाँ पर जो है डायसेक्शन की बात की गई. जब हम डायसेक्शन पढ़ेंगे देन वी विल कम बैक टुवर्ड्स दिस डायग्राम. एंड इसमें ये चीज है कि आपका जो है असेंडिंग एओर्टा मेनली डायसेक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना. 2/3 ऑफ द केसेस एओर्टिक डायसेक्शन के असेंडिंग एओर्टा में होते हैं. और लेकिन एब्डोमिनल जो आपकी, सॉरी एब्डोमिनल में बार बोल रही हूँ, जो एओर्टिक एन्यूरिज्म है वो जो है स्पेयर करता है असेंडिंग एओर्टा को, और मेनली वो जो है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के तौर पर प्रेजेंट करता है. अच्छा, इट स्पेयर्स मेन 3 times more commonly than women and are estimated to occur in about 5% of the men over the age of 60 years. So above the 60 years of age, the incidence of the abdominal aortic aneurysm or AAAs rises. What is the pathogenesis of this aortic aneurysm? Again, atherosclerosis. Atherosclerosis for coronary artery disease, atherosclerosis, the commonest cause of peripheral arterial disease, and again for abdominal aortic aneurysms or generally aortic aneurysm, atherosclerosis is the most common cause. The risk factor for which have previously been described, and however smoking and hypertension predominate with 90% to 95% of the patients having one of both of these risk factors. ठीक है, अगर रिस्क फैक्टर्स आपके पास ज्यादा है, ऑब्वियसली आपका इंसिडेंस भी बढ़ता जाएगा एओर्टिक एन्यूरिज्म का. मोस्ट कॉमन इज एथेरोस्क्लेरोसिस. आपके जो एमसीक्यू है वो इसी तरीके से आ सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म, और उसके अंदर दे कैन गिव एथेरोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग एंड हाइपरटेंशन. देन यू हैव टू चूज फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस. These also appears to be an additional and specific genetic components भी इसके अंदर जो है रोल प्ले करते हैं. And since aortic aneurysm tends to run in families, and इसीलिए जो आप जब भी किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो फैमिली हिस्ट्री इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस तरीके से आपको जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी मालूम होते हैं, और उसके जरिए से आप उस पेशेंट की प्रोग्नोसिस और उसके अंदर जो है इंसिडेंस किसी भी डिजीज का वो जो है आप पिक कर सकते हैं.
क्योंकि जो आपके एन्यूरिज्म्स है इसकी डिफरेंशियल्स में, और ये जो एयोर्टिक डायसेक्शन है इसकी डिफरेंशियल्स में आपके पास कुछ एसोफेजियल डिजीजेस भी आती हैं, ठीक है ना। अब चूंकि ये तो एब्डोमिनल होता है एन्यूरिज्म, उसमें तो नहीं, लेकिन ये जो आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एयोर्टा है ये मेनली आपके पास जो आपका एसोफेगस है वहां पर उसकी भी वही साइट है, तो इसीलिए रप्चर ऑफ द एसोफेगस को आप उससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसी तरह से जो है इसमें इसके अंदर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो आपकी हिस्ट्री है ना, जैसे आप स्टार्ट करते हैं कभी भी किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बायोडाटा, देन यू गो फॉर द चीफ कंप्लेंट्स एंड देन यू डू द जो उसकी सारी क्लिनिकल हिस्ट्री है, देन द सिस्टमिक इंक्वायरी, और उसके बाद आपके जो हिस्ट्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उसके अंदर एक पार्ट जो फैमिली हिस्ट्री का होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर जो है आपको फैमिली हिस्ट्री के अंदर अपार्ट फ्रॉम द हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज कुछ स्पेसिफिक और भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर कोई रोमाटोलॉजी का केस है तो उसके अंदर रोमाटोलॉजिकल इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज इन द फैमिली, and similarly in case of sudden cardiac deaths, and also if you are suspecting a case of abdominal aortic aneurysm, you can ask the patient for the family history of the same presentation as well. अच्छा, उसके अलावा जो है मार्फन सिंड्रोम एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली डायलिटेशन इसके अंदर होती है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद एयोर्टिक एन्यूरिज्म एंड एयोर्टिक डायसेक्शन एज वेल। तो मार्फन सिंड्रोम में एयोर्टिक एन्यूरिज्म और एयोर्टिक डायसेक्शन दोनों ही कॉमन होती है। नाउ वी कम टूवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स। अभी ये कोई भी चीज है जो कि डायलेट हो गई है, अब ये कहाँ पर डायलेट हो रही है उसकी साइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द साइट ऑफ द एन्यूरिज्म। Thoracic aneurysm may typically present with acute severe chest pain, but other features including aortic regurgitation, compressive symptoms such as stridor, trachea, bronchus, harshness due to compression of the recurrent laryngeal nerve, and superior vena cava syndrome may occur. अच्छा, अगर तो आपके पास ये thoracic part को involve कर रही है तो इसके अंदर क्या होगा कि अब वहां थोरेसिक में आपके मीडियास्टाइनम में जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंप्रेशन होगी, तो कंप्रेसिव सिम्टम्स के साथ पेशेंट आएगा। अगर वो ट्रैकिया को कंप्रेस कर रहा है तो पेशेंट को कैन प्रेजेंट विद द स्ट्राइडर, अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को कर रहा है तो पेशेंट कैन प्रेजेंट विद द हॉर्सनेस, एंड सिमिलरली यहाँ पर ऊपर अगर ये बैकवर्ड ये जो एन्यूरिज्म है वो यहाँ पर डायलिटेशन हो जाती है तो एयोर्टिक रिगर्जिटेशन भी होगी, तो एकोकार्डियोग्राफी पे आपको एयोर्टिक रिगर्जिटेशन मिल सकती है, और इसके अलावा एयोर्टिक रिगर्जिटेशन आपको ऑस्कल्टेशन पे मिल सकती है। कैन एनीवन टेल कि एयोर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर सिस्टोलिक होता है या डायस्टोलिक होता है? अब अगर आप पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेंगे आपको डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा या सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा? इट्स अ डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। एयोर्टिक स्टेनोसिस का सिस्टोलिक मर्मर होता है, और एएस से याद रखें, एएस एस फॉर सिस्टोलिक, तो एएस का सिस्टोलिक मर्मर होता है और एआर का उसका ऑपोजिट होगा, इट्स डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पे आपको डायस्टोलिक मर्मर भी मिलेगा। इफ द एन्यूरिज्म erodes into an adjacent structure such as the esophagus or bronchus, the presentation may be with massive bleeding. तो पेशेंट को जो है अगर यही आपका एन्यूरिज्म इरोड कर गया एसोफेगस में तो ऑब्वियसली पेशेंट विल प्रेजेंट विद द मैसिव ब्लीडिंग। Abdominal aortic aneurysm affect with infrarenal segment of the aorta. They can present in a number of ways as summarized in the box. ये box अभी हम पढ़ते हैं, and the usual age at presentation is 65 to 75 years of age. तो age of the patient is very important. Above 60 years of age, aortic aneurysms are common. And for elective presentation and 75 to 85 years of emergency presentation. Elective presentation का मतलब ये है कि you do a screening test and incidentally you find an aortic aneurysm, or you have a patient who has a family history of aortic aneurysm and you do a ultrasound and then you find an aortic aneurysm, ठीक है। तो ये आपके elective presentation होती है। लेकिन emergency presentation जिसमें patient आपके पास इन severe symptoms के साथ present कर रहा है, that is known, these are known as emergency presentations, तो वो जो है above the age of 75 जो है वो presentation ज्यादा common होती है। अच्छा, ये एक और MCQ point है इसके अंदर कि what is the modality of choice for diagnosing aortic aneurysm? Always remember, for aortic
एओर्टिक डायसेक्शन इट इज डिफरेंट, लेकिन एओर्टिक एन्यूरिज्म के लिए इट इज अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग द डायग्नोसिस ऑफ एन एब्डोमिनल एन्यूरिज्म. अच्छा, अब जो है अगर आप के पास पेशेंट आता है और आपका कोई इस तरह से सिनेरियो है, क्लिनिकल सिनेरियो है कि उसमें आपसे पूछा है कि हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द केस, तो उसके अंदर तो इन टर्म बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. ज़्यादा बताए अगर पेशेंट आपके पास हेमाप्टेसिस के साथ आ रहा है या ब्लीडिंग के साथ आ रहा है, आपकी सीबीसी की इंपॉर्टेंस है, चेस्ट एक्सरे की इंपॉर्टेंस है, रीनल आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा है, आपकी यूरिया क्रेटिनिन की इंपॉर्टेंस है. लेकिन यहाँ पर जो है वो आप बेस लाइन सारी लिखेंगे उसके अंदर. और इसके अलावा स्पेसिफिकली इसके लिए अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट वे. आप इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं अगर आपको डायस्टोलिक मर्मर मिल रहा है, थोरेसिक पार्ट इन्वॉल्व है. तो आपने जो है बेसिकली पेशेंट टू पेशेंट आपकी इन्वेस्टिगेशंस ऊपर नीचे होती रहती हैं, आपने अकॉर्डिंगली बताना होता है उसके अंदर. लेकिन अगर एमसीक्यू हो और आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछी हो फॉर एओर्टिक एन्यूरिज्म, देन दिस इज अल्ट्रासाउंड. अच्छा, अब आप कहेंगे हालांकि सीटी जो है, सीटी प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द एन्यूरिज्म. कहीं पर भी अगर देखें तो सीटी जो है ना, सीटी की मोडालिटी ज्यादा एडवांस्ड है अल्ट्रासाउंड से. लेकिन इसको क्यों मोडालिटी ऑफ चॉइस नहीं बनाया जाता? क्योंकि एक तो ये कि ये अनटिल अनलेस किसी पेशेंट को आप ऑपरेशन के लिए फिक्स करते हैं, उसके अंदर तो प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन है ये. लेकिन जब भी सर्विलेंस की बात आती है तो आपने हमेशा उस इन्वेस्टिगेशन को चॉइस पे रखना होता है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो. और सीटी स्कैन इज वेरी हाईली कॉस्ट, इट कॉस्ट सो मच टू द पेशेंट. इसी वजह से, और इसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर भी ज्यादा है. अल्ट्रासाउंड जो है रिलेटिवली सेफ है, प्रेगनेंसी के अंदर भी किया जा सकता है, जबकि सीटी स्कैन के अंदर उसकी अपनी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं. और इसके अलावा इसकी जो है कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से जो है सीटी थोड़ा पीछे चला जाता है. अदरवाइज ऐसी बात नहीं है कि सीटी के अंदर कोई आपको ये फाइंडिंग्स, कोई एओर्टिक एन्यूरिज्म होगा और वो अल्ट्रासाउंड पे आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा और सीटी में नहीं पता चलेगा. सो बेस्ट स्क्रीनिंग भी अल्ट्रासाउंड है, आपका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन भी अल्ट्रासाउंड है. लेकिन अगर किसी पेशेंट का को ऑपरेट करना है तो प्री ऑपरेटिवली यू गो फॉर द सीटी देन. Okay, now we come towards the management. The risk of surgery generally outweighs the risk of rupture until an asymptomatic abdominal aortic aneurysm has reached a maximum of 5.5 centimeter in diameter. So it is again an MCQ point कि आपकी कहाँ पर aortic aneurysm का dilatation कितना होगा कि उस पे जो है आप सर्जरी करेंगे पेशेंट की. क्योंकि याद रखें ये बहुत इन्वेसिव सर्जरी होती है, और जब भी इस तरह से इन्वेसिव सर्जरी होगी तो हमने रिस्क बेनिफिट रेशियोज देखने होते पेशेंट के. तो बेसिकली मैनेजमेंट तो इसकी सर्जिकली है एओर्टिक एन्यूरिज्म की. मे बी आप सर्जरी में इसको ज्यादा अच्छा पढ़ें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास मेडिकली जब पेशेंट प्रेजेंट करता है एंड यू डू एन अल्ट्रासाउंड एंड यू फाइंड द साइज ऑफ अबाउट 5.5 सेंटीमीटर, देन द रेफरल ऑफ द पेशेंट फॉर सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और 5.5 सेंटीमीटर डायमीटर का जो है एओर्टिक एन्यूरिज्म जो होगा, दैट is basically the point या point for the surgery. और इसके अलावा अगर इससे छोटा है then you don't go for the surgery, क्योंकि ये इतनी इन्वेसिव सर्जरी होती है, इसमें जो है ऑन टेबल डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. और इसी वजह से जो है आप के कुछ क्राइटेरियाज हैं कि कहाँ पर आपने पेशेंट को सर्जरी के लिए सिलेक्ट करना है. ओके, डिस्टल एम्बोलाइजेशन इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर रिपेयर रिगार्डलेस ऑफ द साइज. ठीक है, एक तो हमने पढ़ लिया कि अगर 5.5 cm का साइज है तो दिस इज एन इंडिकेशन फॉर द सर्जरी. लेकिन एक और इंडिकेशन भी है कि अभी जब भी मैंने आपको बताया था, जब हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी पढ़ रहे थे, आपको पता है जब इस तरह के डायलिटेशन और पाउचेस बन जाते हैं ना, तो वहां पर ब्लड बहुत स्टैग्नेंट सा हो जाता है, स्लो हो जाता है. वहां पर जो है डायलिटेशन की वजह से वॉल इंजरी भी होती है, तो प्लेटलेट्स एक्टिवेशन भी होगी और आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो बढ़ जाते हैं, आपके इन्फ्लेमेटरी कास्केड एक्टिवेट हो जाता है. तो ये जो थ्रोम्बोसिस बनते हैं ये फर्दर एम्बोलाइजेशन भी करेंगे. तो अगर जो है एम्बोलाइजेशन अगर हो रही है, स्पेशली रीनल आर्टरी एम्बोलाइजेशन होगी, पेशेंट रीनल फेलियर के साथ आ रहा है आपके पास, या एम्बोलाई फिनोमेना किसी भी और साइट का है, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द सर्जरी. ठीक है. और इसके अलावा और अगर लिम्ब हो गया, जैसे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में हम पढ़ रहे थे कि अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया जो है इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन, और उसके अंदर आपको पेशेंट को जल्दी से रीवस्कुलराइजेशन के लिए जाना पड़ता है. तो इसीलिए अगर एम्बोलाइजेशन भी होगी तो वहां पर भी यू विल गो फॉर सर्जरी. अच्छा, ओपन यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट्स ये जो है थोड़े से सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी इंपॉर्टेंट हो, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा कि आप इसमें रिपेयर जो है कौन सा करते हैं. बस आपको ये पता होना चाहिए
कि जो ओपन abdominal aortic aneurysm repair जो है it has been the treatment of choice in both the elective and emergency settings, चाहे emergency settings है चाहे elective settings है। अब elective settings में आप कब कर रहे हैं पेशेंट की सर्जरी? 5.5 cm का आपने अल्ट्रासाउंड किया, 5.5 cm का एन्यूरिज्म है तो यू गो फॉर द सर्जरी। और इसके अलावा अगर आपके पास पेशेंट एम्बोलाइजेशन के साथ आ रहा है, यू गो फॉर द सर्जरी। एंड कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं वहां पर तो फिर आपको जो है पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रोसीड करना पड़ता है। तो ये जो है इसमें आप जो है जो ग्राफ लगाते हैं यूजुअली दैट इज अ डैक्रोन ग्राफ्ट। एंड इसके अंदर फिर 30 डे मोर्टालिटी इसके अंदर डिस्कस की हुई है कि दैट इज अबाउट 5 to 8% फॉर इलेक्टिव एसिम्टोमेटिक, और अगर इमरजेंसी सर्जरी आपने की है तो मोर्टालिटी इज 10 to 20%। ये परसेंटेजेस इतना एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनल ईयर के लेवल पर, आगे जाके फिर भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि However, patients who survive the operation to leave hospital have a long-term survival. अगर एक दफा पेशेंट आपने इमरजेंसी में रिसीव किया और उसको ऑपरेट कर लिया, उस ठीक है उस वक्त की तो मोर्टालिटी उसकी हाई थी, लेकिन वंस आपने उसको प्रॉपर से उसकी ग्राफ्टिंग कर दी, उसको रिपेयर कर दिया, तो तब जो है उसकी मोर्टालिटी बिल्कुल उसी इक्वल हो जाती है टू द नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है। एंड इंक्रीजिंगली एंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर जो ईवार है यूजिंग अ स्टेंट ग्राफ्ट इंट्रोड्यूस थ्रू द femoral arteries in the groin is replacing open surgery। तो ये थोड़ा सा लेस इन्वेसिव है, आप जो थ्रू फेमोरल आर्टरी रिपेयर करते हैं, एंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर जो करते हैं, ये थोड़ा सा लेस इन्वेसिव है और ये मोडालिटी जो है अभी जो है इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर जो है एन्यूरिज्म इज सेकेंडरी टू द मार्फन सिंड्रोम तो फिर आप क्या करेंगे, आप बीटा ब्लॉकर्स देंगे ताकि टू रिड्यूस द रेट ऑफ एओर्टिक डायलिटेशन एंड द रिस्क ऑफ रप्चर। An elective replacement of the ascending aorta may also be considered in patients with evidence of progressive aortic dilatation but carries a mortality of 5 to 10%। तो मार्फन सिंड्रोम अगर किसी पेशेंट को है, हमने अभी पढ़ा कि मार्फन सिंड्रोम में एओर्टिक एन्यूरिज्म एओर्टिक डायसेक्शन दोनों के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनके अंदर जो है आपने बीटा ब्लॉकर से उनको ट्रीट करना है ताकि आप जो है एओर्टिक डायलिटेशन के रेट को रिड्यूस कर सकें और रिस्क जो है उसके रप्चर का उसको रिड्यूस कर सकें, क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर इवन जो ऑपरेटिव मोर्टालिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। ओके, ये एक टेबल है यहाँ पर जहाँ पर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म कॉमन प्रेजेंटेशन। एक तो मैंने आपको बताया कि इंसिडेंटल है, ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन वी डू अ प्लेन एक्सरे, और मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। एक्सरे पे क्या मिलेगा आपको, अगर आपको कोई पेशेंट है एन्यूरिज्म का, एक्सरे में क्या मिल सकता है आपको? एक्सरे में मीडिया स्टैनल डायलिटेशन मिल सकती है ना, ठीक है, मीडिया स्टैनम डायलेट हो जाएगा। अब मीडिया स्टैनम डायलिटेशन की बहुत सारी कॉजेज होती है, तो आपको एओर्टिक एन्यूरिज्म के अंदर भी जो है ये चीज मिल सकती है। ओके, नाउ एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे भी आपको मिल सकता है। इवन लार्ज एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म कैन बी डिफिकल्ट टू फील, सो many remain undetected until they rupture. Studies are currently underway to determine whether screening will reduce the number of the deaths from the rupture. इसके ऊपर अभी भी स्टडीज हैं कि वेदर आपको अबव 60 और 60 इयर्स ऑफ द एज पेशेंट्स को स्क्रीन करना चाहिए फॉर द एओर्टिक एन्यूरिज्म। अब जैसे कोई पेशेंट मार्फन सिंड्रोम का है उसमें तो चले बनता है ना, लेकिन एक नॉर्मल पॉपुलेशन में भी ये स्क्रीनिंग होनी चाहिए या नहीं, ये कंट्रोवर्शियल है। पेन इन द सेंट्रल एब्डोमिनल डायलिटेशन के साथ है पेशेंट, ऑब्वियसली एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म होगा तो आपके पास एब्डोमिनल जो है पेन होगा, पेशेंट को बैक पेन होगा, लोइन इलियोफोसा या ग्रॉइन में पेन हो सकता है। Thromboembolic complications हो सकती हैं, thrombus within the aneurysm sac may be a source of emboli to the lower limbs, and less commonly the aorta may undergo thrombotic occlusion। अगर एओर्टा की थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन होगी तो लोअर लिम्ब की सारी ब्लड सप्लाई गई, ठीक है। सराउंडिंग स्ट्रक्चर सच एज द ड्यूडेनम ऑब्स्ट्रक्शन एंड वॉमिटिंग, अब ड्यूडेनम की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेशेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आएगा। एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसमें ऑब्वियसली पेशेंट विल प्रेजेंट विद द वॉमिटिंग एंड द इंफीरियर वेना केवा, ओडिमा एंड द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। रप्चर के साथ अगर आएगा तो रेट्रोपेरिटोनियम में पेरिटोनियल कैविटी और सराउंडिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉमनली द इंफीरियर वेना केवा लीडिंग टू एन एओर्टा कैवल फिस्टूला, तो उसमें फिस्टूला फॉर्मेशन होगी। फिस्टूला वैसे दो कैविटीज के दरमियान जो एक पाथवे बन जाता है उसको बोलते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देखें यहाँ पर एक ये जो है ना, यहाँ पर ये एब्डोमिनल एन्यूरिज्म इन्होंने बताया हुआ है, ये वाला डायलेटेड थोरेसिक एन्यूरिज्म है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका सेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है, और ये वाला जो है सेक्युलर है। सेक्युलर में इस तरह से जो इस तरह से सैक्स नहीं बन जाते, इस वाली फॉर्म को जो है सेक्युलर एन्यूरिज्म बोलते हैं।
ओके, नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट, तो इसको अगर आप जल्दी से रिवाइज करें एओर्टिक एन्यूरिज्म को, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंफ्रा रीनल एब्डोमिनल एओर्टा कॉमनेस्ट साइट होती है। जो इसकी पैथोजेनेसिस है, मोस्ट कॉमन इज एथेरोस्क्लेरोसिस, लेकिन बाकी रिस्क फैक्टर जो है आपकी स्मोकिंग एंड हाइपरटेंशन भी हैं, और मार्फर सिंड्रोम के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता है। क्लिनिकल फीचर में डिपेंड करता है कि एन्यूरिज्म की साइट क्या है। अगर एब्डोमिन में है तो एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा, अगर थोरेसिक में आया है तो उसके अंदर डिपेंड करता है कि कंप्रेशन कर रहा है, इसोफिगस की कर रहा है, ट्रैके की कर रहा है, ब्रोंकस की कर रहा है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की कर रहा है। इन्वेस्टिगेशंस आपकी सारी बेसलाइन भी आप बताएंगे उसके अंदर, सारी सीबीसी जितनी भी हैं, और उसके अलावा चेस्ट एक्सरे भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात की जाए तो दैट इज अल्ट्रासाउंड। और इसके अलावा जो है मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, आपके पास सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल में बीटा ब्लॉकर्स आपके पास आते हैं, जिसमें आप रिस्क ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म रप्चर को प्रिवेंट करते हैं। सर्जिकल के रिपेयर्स जो हैं वो कब इंडिकेटेड होते हैं? अगर एओर्टिक एन्यूरिज्म का साइज 5.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और इसके अलावा अगर एम्बोलिक फिनोमिना प्रेजेंट है, तो उसके अंदर भी यू गो फॉर द सर्जरी। कौन सा आपके पास ग्राफ्ट यूज होता है? द ग्राफ्ट यूज इज डेक्रॉन ग्राफ्ट। और जो आपके पास इवार है, दैट इज द एंडोवास्कुलर एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर जो है बेसिकली। दिस इज अ न्यूअर मोडालिटी एंड मोर इन प्रैक्टिस नाउअडेज। नाउ वी कम टुवर्ड्स द एओर्टिक डिसेक्शन। एओर्टिक डिसेक्शन जो है, अब एन्यूरिज्म क्या था? उसमें थी डायलिटेशन। डायसेक्शन के अंदर क्या होता है कि देयर इज अ ब्रीच, देयर इज अ क्रैक इन द इंटेग्रिटी ऑफ द एओर्टिक वॉल, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्टीरियल ब्लड है वो मीडिया में चला जाता है। ठीक है, आपका एओर्टा है वो रप्चर, उसके अंदर कोई ब्रीच आ गया, तो आपका उस वहां से उस ब्रीच की वजह से, उस सुराख की वजह से, उस क्रैक की वजह से, या सुरंग की वजह से, उस होल की वजह से ब्लड जो है मीडिया के अंदर जाना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम के अंदर, ये आपकी ट्रू ल्यूमेन है, और ट्रू ल्यूमेन का आप जरा साइज देखिए कितना छोटा है। और ये जो है डिसेक्शन की वजह से जो ब्लड यहाँ सारा जमा हो गया है, दिस इज अ फॉल्स ल्यूमेन, और ये ब्लड सारा यहाँ पर जो है कलेक्ट हो गया है, और इसकी डायलिटेशन आप देखें यहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एओर्टा का जो वॉल है इट विल स्प्लिट इनटू द टू लेयर्स। ठीक है, टू लेयर्स में स्प्लिट हो गई, एंड द एओर्टिक वेल्व मे बी डैमेज्ड एंड द ब्रांचेस ऑफ द एओर्टा मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ऑब्वियसली अगर पेशेंट है, इस डायग्राम में अगर आप दोबारा देखें, डायसेक्शन जब होती है, यहाँ पर अभी एक ब्रीच हुआ, अभी एक तो ये है कि यहाँ पर सिर्फ असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व किया है। इसकी ना दो क्लासिफिकेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसकी होती है स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन है, और दूसरी जो है डी बैके क्लासिफिकेशन है। फर्क क्या है? जो आपकी स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है टाइप ए, एक होती है टाइप बी। ठीक है, ये टाइप ए है, ये टाइप बी है। दिस इज नोन एज स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन इनकी बेस्ड है कि जो टाइप ए के अंदर क्या होता है कि आपका असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होता है, और 2/3 ऑफ द केसेस में तो मोस्ट कॉमनली जो है असेंडिंग एओर्टा ही इन्वॉल्व होता है एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर, जबकि टाइप बी के अंदर डिसेंडिंग एओर्टा जो है इन्वॉल्व होता है। एंड दिस इज इन द रिमेनिंग 1/3 ऑफ द केसेस। और ये जो आपकी सब क्लेवियन आर्टरी निकलती है ना, इस सब क्लेवियन आर्टरी के बाद में जो डायसेक्शन होगा दैट इज टाइप बी, और उससे पहले जहां भी हो रहा है दैट इज टाइप ए। तो मेनली असेंडिंग एओर्टा का होगा तो दैट इज टाइप ए, डिसेंडिंग एओर्टा का होगा आफ्टर द सबक्लेवियन दैट इज टाइप बी। अच्छा, दिस इज द स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन, टाइप ए एंड टाइप बी। स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन में टाइप वे इट कंप्राइजेस ऑफ 2/3 ऑफ द केसेस, और ये जो है रिमेनिंग 1/3 ऑफ द केसेस। एक क्लासिफिकेशन आपकी होती है दैट इज नोन एज डी बैके क्लासिफिकेशन। डी बैके क्लासिफिकेशन में क्या है कि आपका ये जो टाइप ए है इसी को जो है टाइप 1 और 2 में डिवाइड कर दिया है, और इसको जो है टाइप 3 में डिवाइड कर दिया है। तो टाइप 1 में जो है वो ये कह रहे हैं कि आपका जो है असेंडिंग एओर्टा के अंदर जो है एओर्टिक डायसेक्शन होती है, लेकिन इट डज नॉट जो है ये प्रोपगेट नहीं करता। ठीक है ना? नो सॉरी, जो आपकी टाइप 1 है इसमें जो ये वाली पार्ट आपको दिखाई हुई है ना, दिस इज द टाइप 1, कि जिसके अंदर एओर्टिक डायसेक्शन जो होगी इट ओरिजिनेट्स इन द असेंडिंग एओर्टा, बट इट देन प्रोग्रेसेस, इट प्रोपगेट्स टू एटलीस्ट एओर्टिक आर्च एंड पॉसिबली बियॉन्ड इट। ठीक है, इवन उसके
आगे भी चला जाता है, मतलब ये आपका डिसेंडिंग एओर्टा को भी इन्वॉल्व कर रहा है। दिस इज टाइप 1। टाइप 2 के अंदर क्या है, ये इसके अंदर आपके सिर्फ असेंडिंग एओर्टा ही इन्वॉल्व है और ये यहीं तक कन्फाइंड रहता है एंड इट डज नॉट प्रोपगेट्स। ये डायग्राम थोड़ी सी इन्होंने जो डेविडसन के अंदर तो इस तरीके से दी हुई है, लेकिन जब डीप की क्लासिफिकेशन की बात आती है ना, तो ये वाला टाइप 1 में आ जाता है और ये टाइप 2 के अंदर आ जाता है, और टाइप 3 जो है टाइप बी ही जो आपकी स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन की है वही इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, now we come towards the pathogenesis. Basically जो aortic dissection है इसकी common जो cause है, it can be spontaneous या iatrogenic tear in the intima of the aorta, especially जो catheterization procedures होते हैं उसके दौरान जो है ये उसकी complication है aortic dissection। इसके अलावा aortic dissection Marfan syndrome में common होती है, ये हमने पढ़ा। और जो other dissections are triggered by the primary hemorrhage in the media of the aorta, which then ruptures through the intima into the true lumen. This form of the spontaneous bleeding from the vasa vasorum is sometimes confined to the aortic wall, and when it may present as painful intramural hematoma. कभी कभार इस तरह से भी होता है कि आपकी ये जो एओर्टिक डिसेक्शन है इसका एक होल बना, ये यहाँ से मीडिया के अंदर ब्लड चला गया और उसके बाद ये दोबारा किसी और साइड से रीओपन हो जाती है एओर्टा के अंदर, और इस तरह से वो एओर्टा डबल ल्यूमन का हो जाता है। और इसके जो कोई भी जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एओर्टिक वॉल की इंटेग्रिटी को थ्रेटन करेंगे, जिसमें हाइपरटेंशन आता है, एओर्टिक डिजीजेस आती हैं, उसमें एओर्टिक डिसेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके पास जो है हाइपरटेंशन, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे आपके फॉर एओर्टिक डिसेक्शन? दीज आर हाइपरटेंशन 80% ऑफ द केसेस। एन्यूरिज्म के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस था, इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे डायसेक्शन, एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन है। दिस इज अगेन एन एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है। उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस है, जबकि इसके अंदर अगर आपके जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर पूछेंगे तो दैट इज हाइपरटेंशन इन केस ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन। देन वी हैव एथेरोस्क्लेरोसिस, कोआक्टेशन ऑफ द एओर्टा, तो उसकी मॉर्फोलॉजी में मसला है तो इट विल अगेन लीड टू द एओर्टिक डिसेक्शन। जेनेटिक्स में मार्फन सिंड्रोम भी है, एहलर-डनलॉस सिंड्रोम भी है, दोनों कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं। आपका जो ब्लड वेसल वॉल्स है वो बनती, उनमें कोलेजन, इलास्टिन, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो जब उन्हीं के अंदर डिफॉर्मिटी है तो पेशेंट कैन प्रेजेंट विद द एओर्टिक डिसेक्शन। अच्छा, ये फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस कार्डिक सर्जरी, कैबेज, एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट, प्रेगनेंसी यूजुअली थर्ड ट्राइमेस्टर, ट्रॉमा की वजह से व्हिच कैन बी आइट्रोजेनिक, कार्डिक कैथेटराइजेशन, इंट्रा एओर्टिक बलून पंपिंग। इंपॉर्टेंट भी याद रह जाए आपको, वो बहुत ही है कि मोस्ट कॉमन आपको याद होनी चाहिए। बाकी एथेरोस्क्लेरोसिस भी तकरीबन हर जगह चली जाती है, और एओर्टिक डिसेक्शन और एओर्टिक एन्यूरिज्म के अंदर कुछ जेनेटिक कॉजेज भी हैं, तो ये मार्फन, एहलर्स, इन चीजों को जो है याद रखें आप। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? एक पेशेंट है आपके पास, अगर एओर्टिक डायसेक्शन के साथ आता है, और ये जो अभी हमने सारा सिनेरियो भी पढ़ा ना, इसके अंदर जो टिपिकल हिस्ट्री जो होती है एओर्टिक डायसेक्शन की, दैट इज सडन कोलैप्स विद अक्यूट सिवियर रेट्रोस्टेनल सेंट्रल क्रशिंग चेस्ट पेन विद इन मिनट्स दैट इज रेडिएटिंग टू द बैक। मतलब पेशेंट का इतना सिवियर वो पेन होगा कि और ये मेनली जो है एंटीरियर चेस्ट में, जो कि जब ये इन्वॉल्व करता है डिसेंडिंग एओर्टा को, तो ये इंटरस्कैपुलर रीजन में भी आ जाता है। लेकिन मेनली जो है पेशेंट की जो कंप्लेन होती है वो रेट्रोस्टर्नल सेंट्रल क्रशिंग चेस्ट पेन की होती है विद इन मिनट्स। और इसके अलावा ये है कि पेशेंट का कोई रीसेंट आपको कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज के बाकी फैक्टर्स नहीं मिल रहे, 2 हाइपरटेंशन होगा पेशेंट के अंदर, और इसके अलावा जो है मतलब क्रॉनिक हाइपरटेंशन की हिस्ट्री इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये इसका पेन जो है एमआई से भी ज्यादा होता है, और पेशेंट मेनली आपके पास कोलैप्स के साथ, शॉक के साथ जो है आते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जब एओर्टिक डिसेक्शन की आती है, देन इट इज द सीटी और एमआर एंजियोग्राफी, ठीक है। इसके अंदर अल्ट्रासाउंड वगैरह या इकोकार्डियोग्राफी नहीं है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस सीटी या एमआर एंजियोग्राफी, एंड बोथ ऑफ व्हिच आर हाईली स्पेसिफिक एंड हाईली सेंसिटिव। चेस्ट एक्सरे शुड बी परफॉर्म। चेस्ट एक्सरे आपको क्या देगा? ब्रॉडनिंग ऑफ द मीडियास्टाइनम, वो आपको एओर्टिक एन्यूरिज्म के अंदर भी मिल सकती है, एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द एओर्टिक नक्कल, जो एओर्टिक नक्कल आपका प्रॉपर बन रहा होता है उसकी डिस्टॉर्शन हो जाएगी, वो प्रॉपर आपको उस तरह की एनाटॉमिकल फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी, एंड बट इन 10% ऑफ द केसेस दे मे बी एब्सेंट। इसी वजह से आपकी जो चॉइस है दैट इज सीटी या एमआर एंजियोग्राफी, वो आपको 100% रिजल्ट देगी। लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन इज कॉमन इन दीज पेशेंट,
and the ECG may show left ventricular hypertrophy in patients with hypertension. अब जारी बात है, पेशेंट अगर हाइपरटेंशन का होगा तो आपने अक्सर जो है एको अगर देखे होंगे इन पेशेंट्स के, तो आपने ये चीज देखी होगी कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, एक तो उनकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है और उनके अंदर डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन इसीलिए होता है, ज़ाहिर बात है हाइपरट्रॉफीड हार्ट है वो सही से रिलैक्स ही नहीं होता, इसी वजह से इनमें डायस्टोलिक ग्रेड 1 ग्रेड 2 डिसफंक्शंस आपको हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज के अंदर नजर आते हैं। तो पेशेंट अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन चूंकि रिस्क फैक्टर है फॉर एओर्टिक डिसेक्शन, देन ईसीजी में भी आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिल सकती है, इकोकार्डियोग्राफी में भी आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिल सकती है। अच्छा, रियली चेंजेस ऑफ अक्यूट एमआई भी आपको मिलेंगे। अच्छा, अक्यूट एमआई की चेंजेस क्यों मिलती हैं इसके अंदर? एओर्टिक डायसेक्शन का पेशेंट है तो एमआई के साथ क्यों प्रेजेंट करेगा? एनीवन? मैम क्योंकि ब्लड फ्लो टू दी कोरोनरी आर्टरी का जब मतलब हार्ट स्टोमेन बन जाएगा, ब्लड फ्लो टू दी कोरोनरी आर्टरी कम होगा, जिसकी वजह से एमआई प्रेसिपिटेट करेगा। एक्सीलेंट। ज़ाहिर बात है आपकी जो एओर्टिक डिसेक्शन है, अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखें ना, तो ये जो आपकी मेन आर्टरीज हैं, या आप देखें ये आर्म की पल्सेस यहाँ पर जा रही हैं, या आपकी ब्रेकियोसेफेलिक निकल रही है, या आपकी जो है लेफ्ट कैरोटिड निकल रही है, तो आपकी सेरेब्रल सर्कुलेशन भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है सिमिलरली, या आपकी लिम्स को जा रही है तो आपकी और ये खुद ये जो प्रॉक्सिमल अगर प्रोपोगेट करेगा तो आपकी कोरोनरी आर्टरीज भी इन्वॉल्व होंगी, इसी वजह से जो है पेशेंट आपके पास एमआई के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, इसकी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखें कि जब भी बैकवर्ड प्रोपगेशन होती है ना, एओर्टिक आपका जो डिसेक्शन है बैकवर्ड अगर प्रोपगेट करेगा तो ऑब्वियसली एओर्टिक वेल्व को भी इन्वॉल्व करेगा, तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन भी हो सकती है। तो अगेन एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मैंने मर्मर बताया आपको कौन सा है, डायस्टोलिक मर्मर मिल सकता है आपको एग्जामिनेशन पे, ठीक है ना। और इसमें स्पेशली राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है तो पेशेंट इंफीरियर वॉल एमआई के साथ भी आएगा, और इसके अलावा अगर ये पेरिकार्डियम के अंदर रप्चर हो गया तो फिर कार्डियक टेम्पोनार्ड के साथ भी पेशेंट आ सकता है, तो इट इज अगेन अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। नाउ वी कम टूवर्ड्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको टाइप्स जो इसकी है ना, टाइप ए एंड टाइप बी, इसकी इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट में आती है, क्योंकि टाइप ए जो है उसकी मैनेजमेंट ऑफ चॉइस इज सर्जिकल, और उसको जो है आपने सर्जिकली रिपेयर करना है। लेकिन आपका बीपी कंट्रोल में भी इसमें इंपॉर्टेंट है, और जो आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है बीपी कंट्रोल की वो आईवी जो है बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, मेनली लेबिटोलोल यूज होती है, ठीक है। आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका टारगेट इज 100 to 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा, अब अगर टाइप बी एओर्टिक डिसेक्शन है, टाइप बी एओर्टिक डिसेक्शन के अंदर आपके पास कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फिर आ जाती है, उसमें सर्जिकल फर्स्ट नंबर पे नहीं आता, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर टाइप ए इज सर्जिकल, बट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर टाइप बी इज सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव, और उसके अंदर आप ब्रेस्ट पेशेंट को एडवाइस करते हैं, आप ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं, आईवी लेबिटोलोल देते हैं ताकि आप उसकी प्रोग्रेशन को प्रिवेंट कर सके, और इसके अलावा जो है आप एंडोवास्कुलर रिपेयर भी कर सकते हैं एओर्टिक डिसेक्शन की, ठीक है। अच्छा, जो एओर्टिक डिसेक्शन है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि बीटा ब्लॉकर्स, अगर आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ आते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी आपके पास, बीटा ब्लॉकर, ये भी आपका एमसीक्यू पॉइंट है। दूसरा ये कि कुछ कंडीशंस हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, देन यू कैन गो फॉर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो उसमें भी जो है जो नॉन डाइहाइड्रोप्टिन वाले जो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ना, जो नॉन डाइहाइड्रोप्राइडाइंस वाले जो होते हैं, डिल्टाइजैम और वेरापैमिल जो है, ये आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दीज आर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऑफ चॉइस फॉर एओर्टिक डिसेक्शन। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर बीटा ब्लॉकर से कंट्रोल नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर, क्योंकि मेन एम आपका ये है कि आपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 100 से 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक लाना है और हार्ट रेट को भी कम करना है। अगर आपका बीटा ब्लॉकर से नहीं कंट्रोल हो रहा तो देन यू कैन गो फॉर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, वो भी एक यूजफुल एडजंक्ट है, लाइक यू एड ऑन दिस ट्रीटमेंट, उसका आपका फर्स्ट लाइन ये कभी भी नहीं होता। लेकिन ये जो है चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर की इजेक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, प्रीलोड को बढ़ा देता है, तो बेटर टू बी अवॉइडेड। लेकिन व्हेन यू आर नॉट लेफ्ट विद अदर चॉइसेस कि आप लेबिटोलोल को मैक्सिमम डोज तक यूज कर चुके हैं एंड यू आर अनएबल टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, देन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, यू कैन ऐड अ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, एंड उससे भी नहीं हो रहा देन यू कैन ऐड
ऐड हाइड्रोलिजीन, और उसमें भी अगेन आपके पास इस हद तक वैसे पेशेंट का कंट्रोल हो ही जाता है। एंड लास्टली आपके पास जब आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं, ये टाइप बी की बात हो रही है कि उसमें जो है आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कंजर्वेटिव पेशेंट को रखते हैं, देन यू गो फॉर द सर्जरी इफ नीडेड। कार्डिक कंसल्टेशन, ऑब्वियसली कार्डिक वाली डील कर रहे होते हैं इसको, लेकिन अगर टाइप ए होगा तो उसके अंदर ठीक है आप लेबिटोलोल से ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ वी कम टुवर्ड्स द एओर्टाइटिस। अच्छा, ये एमसीक्यू वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिफिलिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है एओर्टाइटिस की। एओर्टाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एओर्टा and it produces saccular aneurysm of the ascending aorta containing calcifications, and other conditions that may be associated with aortitis include Takayasu disease, joint cell arthritis and axial spondyloarthritis. ये हम इंशाल्लाह जब rheumatology cover करेंगे हम ये सारी diseases पढ़ेंगे। Marfan syndrome को थोड़ा सा इसमें इन्होंने इसलिए डिस्कस किया हुआ है क्योंकि इसकी जो है एसोसिएशन है बोथ विद द एओर्टिक डायसेक्शन एंड एओर्टिक एन्यूरिज्म। ठीक है, तो ये जो है हम जल्दी से इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। मार्फन सिंड्रोम जो है 0.02% ऑफ द पॉपुलेशन में है। इट्स अ रेयर डिसऑर्डर, इट इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये भी आपका एमसीक्यू पॉइंट है कि मार्फन सिंड्रोम इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी जीन डिफॉर्म जिन म्यूटेशन किस जीन में होती है? फिब्रिलिन जीन में होती है, जो कि FBN1 जीन है। ठीक है, which leads to the deficiency of fibrillin 1. Fibrillin 1 नहीं होगा, it will lead to the reduced microfibril formation, and this disrupts the mechanical integrity of the connective tissue, giving rise to a wide range of clinical features. तो आपकी जब मायोफिब्र जो इसकी माइक्रोफिब्रिल्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वही अंदर से खोखले हैं, तो ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू आपका तो हर जगह है, बोन्स में है, टीथ में है, वेसल्स में है, स्किन में है, डर्मिस में प्रेजेंट है, तो वहां पर इसी वजह से इसकी मैनिफेस्टेशन हर एक जगह पर आती है। कार्डियक में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो इंटेग्रल पार्ट है वस्कुलेचर का, तो अगर मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट्स में इसी वजह से ये वाली डिजीजेस कॉमन होती हैं। तो एओर्टिक डायसेक्शन एंड एन्यूरिज्म हमने जैसे कि अभी पढ़ा, दीज आर द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मार्फन सिंड्रोम, बट मेनी अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मे बी ऑब्जर्व्ड। दीज इंक्लूड एओर्टिक एंड माइट्रल वेव रिगर्जिटेशन, डायलिटेशन होती है इसके अंदर। एमआर का मर्मर कौन सा होता है? Pan-systolic murmur होता है। जी जी, इट्स अ पैन सिस्टोलिक मर्मर, वेरी गुड। अच्छा, स्किन लैक्सिटी होगी क्योंकि स्किन का भी कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होगा। जॉइंट हाइपर मोबिलिटी होगी, या आप अक्सर टेस्ट भी करते होंगे कि जो पेशेंट है वो अपना थंब को बिल्कुल अपनी रिस्ट तक ला सकता है, ठीक है ना। अरेक्नोडक्टाइली, लंबी लंबी फिंगर्स होंगी। स्कॉलियोसिस होगा, पेक्टस एक्सकवेटम एंड हाई आर्च्ड पैलेट, ऑक्यूलर एब्नॉर्मलिटी सच एज लेंस डिस्लोकेशन एंड रेटिनल डिटैचमेंट एंड एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ न्यूमोथोरैक्स। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन जो है आप इसके अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? वैसे तो जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जेनेटिक टेस्टिंग से ही वो कंफर्म होते हैं, लेकिन इसका ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ही बड़ी क्लासिक सी होती है। क्लिनिकली पेशेंट डायग्नोज हो जाते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स को कुछ चीज़ों के लिए स्क्रीन करना पड़ता है जिनके लिए ये हाई रिस्क होते हैं, जैसे डिसेक्शन है, एओर्टिक एन्यूरिज्म है। इमेजिंग बाय चेस्ट एक्सरे may reveal evidence of aortic dilatation, but echocardiography is more sensitive and can also demonstrate valvular diseases जैसे कि MR और AR इनके अंदर कॉमन होता है। And patients with Marfan syndrome should undergo serial monitoring of the aortic root by echocardiography, and if evidence of dilatation is observed, then elective surgery should be considered. मतलब ये जो मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं इनको आपको 6 मंथली ईयरली इकोकार्डियोग्राफी करनी होती है एओर्टिक रूट डायलिटेशन के लिए, क्योंकि अगर आपको वहां पर इसका एविडेंस मिल गया तो बजाय इसके कि पेशेंट आपके पास इमरजेंसी के साथ है, क्योंकि इमरजेंसी आप किसी चीज को किसी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं उसके अंदर मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, तो इट इज बेटर टू ऑपरेट इलेक्टिवली। अच्छा जी, उसके अलावा मैनेजमेंट ट्रीटमेंट विद द बीटा ब्लॉकर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स may reduce the risk of aortic dilatation and should be given in all patients with Marfan syndrome. Activities that are associated with increases in the cardiac output are best avoided, ठीक है। Surgery to replace the aortic root can be performed in patients with progressive aortic dilatation, तो depending upon the case, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स और ACE inhibitors की इनमें इंपॉर्टेंस है ताकि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस है उनसे प्रिवेंट कर सकें। देन वी हैव द कोऑक्टेशन ऑफ द एओर्टा। इसको सिर्फ थोड़ी सी रीड देंगे, कोऑक्टेशन को हम इंशाल्लाह डिटेल में दोबारा आगे पढ़ेंगे। Coarctation of the aorta is a term used to describe a narrowing distal to the origin of the left subclavian artery. अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास जो aorta की branches निकलती हैं, brachiocephalic निकलती है, carotid निकलती है और ये left subclavian निकलती है, ठीक है ना। तो left subclavian artery
के बाद जो है मेनली इसकी जो है नैरोइंग होती है। ये भी अगेन आपका एमसीक्यू पॉइंट है कि जो इसका कोआक्टेशन का जो पॉइंट है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो इट इज डिस्टल टू द रीजन ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। एंड इट इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू congenital heart disease, but narrowing of the aorta leading to similar symptoms can occur in other conditions such as Takayasu arthritis and trauma, and diagnosis and management of coarctation are discussed later, वो हम फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये मैंने आपके लिए पिक्चर, ये जो डी बैके क्लासिफिकेशन और स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन उसकी पिक्चर डाली थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी ऑलरेडी। ये आप लोग इसको दोबारा गौर से देख भी लीजिएगा। अब दोबारा एमसीक्यू की तरफ आए, कोई एक पढ़े और उसका आंसर करे। आई थिंक इट्स वेरी इजी। मेन क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ एन एओर्टिक डिसेक्शन। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, एओर्टिक डिसेक्शन का टाइप ए है, टाइप बी, जो आपकी स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन है। 2/3 ऑफ द पेशेंट जो है टाइप ए होते हैं, और टाइप ए में कौन सी जगह इन्वॉल्व होती है? नाउ इट्स वेरी इजी, आई थिंक। एनीवन? मैम इसमें डिसेंडिंग थोड़े से उल्टा आएगा क्योंकि पेन रेडिएट कर रहा है बैक की तरफ। आप जो है जरा क्वेश्चन पे गौर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन इन द इनिशिएशन ऑफ एन एओर्टिक डिसेक्शन? इनिशिएशन ऑफ एन एओर्टिक डिसेक्शन, डिसेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा, ठीक है ना। इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट किया करें, क्योंकि अब वो ये अभी आपसे नहीं पूछ रहे कि वो कहाँ तक प्रोपगेट कर गया आपका। तो मैंने आपको वो क्लासिफिकेशन में बताया ना कि वो तो जो आपका है प्रोपगेट करता है आपका असेंडिंग एओर्टा से हो, वो बैकवर्ड भी प्रोपगेट करता है, वो फॉरवर्ड भी प्रोपगेट करता है, लेकिन इसकी इनिशिएशन कहाँ पर होती है? मोस्ट कॉमनली इट इज असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। तो इसीलिए आपने थोड़ा सा हर एक वर्ड पे जो है कॉन्सेंट्रेट करना होता है कि बेस्ट मोडालिटी क्या है, या इनिशियल मोडालिटी क्या है, या नेक्स्ट मोडालिटी क्या है। अब इसके अंदर अगर इनिशिएशन का पूछा है तो आंसर विल बी असेंडिंग एओर्टा। बट वेरी गुड। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच। आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन सेंड अ वॉइस नोट इन द ग्रुप, एंड काइंडली आप लोगों को जो टास्क दिए जाते हैं वो कर लिया करें। इससे आप लोगों का अपना ही फायदा है, ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।